Hello friends, so our next video is again aimed at you all students. Now the next topic which I have got is how to increase your efficiency when you are working from home. Now in my first video, if you remember, I had given you one very important point. The point of view, the thought process was that you are a soldier. Once you start thinking like that, automatically you'll see the difference. Whenever you are facing some challenge or tough times, just think of this, how would a soldier would have reacted in that? Now, I extend this thought process further to answer the second question, that is how to increase efficiency. And again, the answer is a soldier's attitude. See, our soldiers, as we all know, are the toughest persons and they can withstand the toughest of the times. Whether it be any terrorist attack, whether it be patrolling, protecting our countries at high altitudes or in deserts with 55-56 degrees temperature, or even in bunkers where there is no light, where there is no even fresh air, and this they do for days at a stretch. Now, what makes them so strong to give the best output in all odd circumstances? And the answer lies in one simple thing, that is discipline. When a soldier undergoes training to become a soldier, the most important thing, or rather I'll say the first thing that is taught to him is discipline. Let us implement this in ourselves so that we also can deliver in all odd times, in all tough times, like a soldier does. Now when I say this, I'm sure an obvious question would be, what should be this discipline be like? My answer is very simple. So since I am talking about discipline, and maybe I'm sure parents and many people would be listening to this, I'll just converse in a very homely language. So मैं हिंदी में बात करूँगा. So my point is कि ये discipline हम कैसे लाएं? Answer is very simple. See, we have 24 hours. हमारे पास 24 घंटे है. Let us make 5 slots. हम दिन के 5 slots बनाएंगे, 2.5 hours each. तो ये हो गए 12.5 घंटे, और इसके बीच में मैं आपको हाफ आवर का ब्रेक देता हूं. सो ये हो गए 2.5 घंटे. सो 15 घंटे हो गए. अब इसके अलावा आपके पास जो 9 hours बचते हैं, that I give to you completely for your personal basic necessities, which include sleep, which include bathing, which include even food. Now, please pay attention to this. So now I am giving you a schedule, a discipline of 15 hours. दिन के 15 घंटे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो सबसे पहली बात, 2.5 घंटे के 5 schedules है. I'll start from the morning. I personally believe कि आपने जल्दी उठना चाहिए. I know इसके opposite बहुत सारे arguments रहेंगे, but again, since I'm following a soldier's attitude, I'll go by that approach only. So, you get up early. मैं ये नहीं बोलूँगा आप 5 बजे उठिए, आप उठते हो well and good. But let us say you get up by 6. And I give you 1 hour in the morning to complete your basic morning necessities. और इसी 1 hour में I'll say that जब आप उठते हो, सबसे पहला 15-20 मिनट, सबसे पहले तो उठते get out of the bed. The first thing, बहुत बार बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, कंप्लेन रहता है, सर आलस आता है, नींद नहीं खुलती. I'll tell you one thing. See, सबसे पहली चीज़ अलार्म लगाइए. अलार्म आपसे दूर लगाइए, और जैसे ही वो अलार्म बजता है, सबसे पहली चीज़ करना है, जंप आउट ऑफ योर बेड. Jump out of your bed, go out of your bedroom. और
घर के किसी और शांत कोने में, जहाँ पे भी आपको लगता है शांति है, जाके बैठिए। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठने को बोल रहा हूँ कि ये शांति वाला टाइम आपको सिर्फ सुबह मिलेगा। गो एंड सिट देयर और मे बी 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर शांति से बैठिए। मैं नहीं कहूंगा आप मेडिटेशन करिए, इट इज योर चॉइस। आई हैव अनदर सेशन ऑन मेडिटेशन, उस पर हम अलग से बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इधर ये 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर में मेडिटेशन करिए, आपको जो करना है करिए, बट बी विथ योर सेल्फ। आपका कोई अच्छा बालकनी है जहां से आप बाहर देख सकते हो, बाहर का आपको कुछ दिखता है, जस्ट बी देयर। किसी अच्छे से कॉर्नर में जहां पे फ्रेश एयर आती हो, जस्ट गो एंड सिट एंड बी विथ योर सेल्फ। अपने साथ रहिए, सोचिए अपने बारे में, आपका दिन कैसा जाएगा, आप क्या चाहते हो अपने आप से। ये बेस्ट टाइम होता है जब आप खुद से बात करते हो। नाउ ये हाफ एन आवर जाने के बाद नेक्स्ट हाफ एन आवर इज फॉर कंप्लीटिंग योर मॉर्निंग रूटीन्स। नाउ आपका पहला 2.5 आवर्स का स्केड्यूल शुरू होता है। अब ये जो मैंने 5 2.5 आवर्स के स्केड्यूल बनाए हैं, इसमें मैं 3 स्केड्यूल्स डेडिकेट करता हूं आपके प्रोफेशन, आपके स्टडीज के रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई करने के लिए। सो 2.5 आवर्स ऐसे 7.5 घंटे ये आपके पढ़ने का, या अगर आप प्रोफेशन में हैं तो उससे रिलेटेड काम करने का मैं आपको टाइम अलोकेट करने को बोल रहा हूं। बाकी जो 2 स्लॉट्स है, एक 2.5 आवर्स इज फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट, self improvement, and the other 2.5 hours is your family time. Please follow this if you really want to see a big change in yourself. अगर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, प्लीज ये रूटीन फॉलो करिए, डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और एक कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी चीज 21 डेज तक फॉलो करते हैं वो आदत बन जाती है, और जो भी चीज आप 40 डेज तक फॉलो करते हैं वो आपका बिहेवियर, कैरेक्टर बन जाता है। विदाउट अ ब्रेक यू हैव टू डू दिस। सी, डेवलपमेंट अपने आप नहीं होगा, वो आपको एफर्ट लेके ही करना है। नाउ जो पहला 2.5 घंटा है जो मैंने बोला, वो आपके सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए है। इसमें मैं चाहूंगा कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज को डेडिकेट करिए। एंड बाय एक्सरसाइज, क्योंकि आप सब लोग यंग है, आई विल मीन गुड स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, मे बी हाफ एन आवर 45 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्ट। और फिर जो 1.5 घंटा है, इसमें प्लीज, आई रिपीट माई वर्ड्स, प्लीज वो करिए जो आप में एक एडिशन लाएगा। आई विल गिव यू एग्जांपल। कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखिए। सेकंड, कोई नया टूल सीखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेल टूल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। आपको ये रोज का टाइम डेडिकेट करना है इस तरीके से कि आपके लिए जो मैंने 2.5 घंटे का स्केड्यूल दिया है, उसमें 1 घंटा इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज रूटीन, 1.5 घंटा इज सम सेल्फ डेवलपमेंट। अगर इसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल इवन गिव यू स्केड्यूल फॉर दिस। आप क्या करनी चाहिए मैं वो भी आपको पर्सनली गाइड करूंगा। तो ये हो गया आपका पहला 2.5 आवर्स। देन यू हैव अ हाफ एन आवर ब्रेक, मे बी उसमें आप आपका बेदिंग करेंगे, आप उसमें आपका ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर आपके 2.5 घंटे का स्केड्यूल शुरू होता है जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। अगर आप प्रोफेशन में है तो आपके काम से रिलेटेड है। अब इसमें आपके, क्योंकि इस वक्त आपके ऑनलाइन क्लासेस चलते होंगे, सो आप क्लासेस अटेंड करेंगे। अब ये आपको क्लास के रूटीन के हिसाब से टाइम टेबल मैच करना है। और मैं अज्यूम करता हूँ कि 2 स्लॉट्स अगर आपके क्लासेस में जा रहे हैं, यानी अराउंड 5 आवर्स का क्लासेस है, तो जो अगला 2.5 घंटा बचता है, दैट इज फॉर सेल्फ स्टडी। सो मैंने आपको 5 स्लॉट्स दिए थे, जिसमें 3 आपके पढ़ने के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए है, एक आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट है। अब बचता है आखिरी वाला 2.5 घंटे का स्लॉट। ये जो 2.5 घंटे का स्लॉट है, दैट शुड बी योर फैमिली टाइम, एंड प्लीज 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 फॉलो दिस। आपने इसके पहले नहीं किया, शायद आपको ये करने में इनिशियली ऑड लगेगा, आई नो, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, बट प्लीज करिए। आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में ये फिजिकल डेवलपमेंट करेगा, ये आपका फ्यूचर करियर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करेगा, मगर जो आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होना है वो यहां से होगा। सो प्लीज प्लीज डू दिस। अब फैमिली टाइम में आप क्या करेंगे? यू कैन हैव डिनर विथ योर फैमिली,
You can spend some time maybe playing games, maybe watching some common serials or movies. ये आप उनके साथ करिए. If you have elderly, कुछ आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स है, तो प्लीज़ उनके साथ स्टोरीज डिस्कस करिए, उनको कहिए स्टोरी सुनाने को. दैट गोज अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ. जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे, ये आपके लाइफ में, आपके कैरेक्टर में जो वैल्यूज ऐड करेंगे वो आपको कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं दे सकता. राइट? एंड अगेन बिफोर यू गो टू बेड, प्लीज हाफ एन आवर हो सके तो वापस वो टाइम आपको ऐसा स्पेंड करना है जिसमें यू विल डू सम सेल्फ थॉट कि भाई आज का दिन जो भी आपने स्पेंड किया उसमें क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, अगले दिन में आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे, आप इसमें कहाँ पे क्या नई चीज़ें ऐड करना चाहेंगे कि अच्छा मैं एक चीज़ मैंने सीख ली, कोई टूल सीख लिया, चलो अब मैं लैंग्वेज सीखता हूँ, लैंग्वेज सीख लिया, मैं बॉडी लैंग्वेज सीखता हूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स. और आज सब कुछ नेट पे अवेलेबल है और मेजॉरिटी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है. यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से सोशल मीडिया नहीं फॉलो करें. यू कैन डू दैट प्लीज़, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. बट रिमेंबर वन थिंग, वो भी एक डिसिप्लिन, एक रूटीन में होना चाहिए. आपके इस दिन भर के टाइम में से मैंने आपको 9 घंटे दिए, इसके अलावा इसमें बीच में हाफ आवर का ब्रेक है, तो वो तो आप यूटिलाइज करेंगे रेस्ट के लिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए. पर इसके अलावा जो 9 आवर्स है उसमें यू कैन मेक अ स्लॉट ऑफ हाफ एन आवर, 1 आवर फॉर योर सोशल मीडिया टाइम. राइट? Please follow this. I'm sure this schedule, this discipline will go a long way in your progress, in your development. Fine. I'm sure this will help you. So follow this. If you have any doubts, you can always personally contact me, and take care. Thank you.